کہانی شروع کرنے سے پہلے اب سے گزارش ہے کہ پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ یہاں دی لاکڈ روم پر مبنی ایک مختصر ہارر کہانی ہے۔ مقفل کمرہ۔ سامنتھا نے آخرکار اپنے خوابوں کا اپارٹمنٹ ڈھونڈ لیا تھا۔ یہ ایک دلکش پرانی عمارت میں تھی جس میں اونچی چھتیں، ونٹیج لکڑی کا کام اور کرایہ وہ واقعی برداشت کر سکتی تھی۔ صرف ایک عجیب و غریب کیفیت تھی، حال کے آخر میں ایک مقفل کمرہ۔ مالک مکان نے مختصرہ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اسے ذخیرہ کرنے کی جگہ قرار دیا جو برسوں سے استعمال نہیں ہوئی تھی۔ سمانتھا نے اس کے بارے میں کچھ نہیں سوچا۔ پہلی چند راتیں غیر معمولی تھیں۔ سمانتھا نے اپنا فرنیچر ترتیب دیا، تصویریں لٹکائی اور جگہ کو گھر جیسا محسوس کیا۔ لیکن چوتھی رات اس نے اسے سنا۔ بند دروازے کے پیچھے سے ایک ہلکی سی سرگوشی کی آواز آ رہی تھی۔ وہ کانوں کو دباتے ہوئے رک گئی۔ الفاظ بنانے کے لیے یہ بہت نرم تھا، لیکن اس نے اس کی ریڑھ کی ہڈی کو ایک کپکپی بھیج دی۔ اگلے چند دنوں میں سرگوشیوں میں اضافہ ہوتا گیا۔ یہ سورج غروب ہوتے ہی شروع ہوا اور طلوع فجر تک نہیں رکا۔ تجسس خوف کے ساتھ گھل مل گیا اور اس نے خود کو دروازے کی طرف گھورتے ہوئے پایا کہ اندر کیا ہو سکتا ہے۔ ایک شام سمانتھا نے فیصلہ کیا کہ اسے جاننا ہے۔ ٹارچا اور پرانی چابیوں کے سیٹ سے لیس اسے ایک دراز میں ملا۔ وہ دروازے کے قریب پہنچی۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا جب اس نے ایک ایک کر کے ہر چابی کو آزمایا۔ آخرکار ایک نے تالا لگا دیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے ہچکچایا، پھر دروازے کو دھکیل دیا۔ کمرہ اندھیرا تھا، ہوا دھول اور غفلت سے بھری ہوئی تھی۔ سمانتھا نے اپنی ٹارچا کو پوری جگہ پر پھیلاتے ہوئے چادروں میں ڈھکا پرانا فرنیچر، پیلے رنگ کے اخبارات کے ڈھیر اور چھت سے لٹکے ہوئے جالے کو ظاہر کیا۔ کونے میں اس نے ایک بڑا آرائشی آئینہ دیکھا۔ جیسے جیسے وہ قریب آیا، سرگوشیاں تیز ہوتی گئیں۔ وہ اپنا عکس پیلی اور چوڑی آنکھوں سے دیکھ سکتی تھی، لیکن وہاں کچھ اور تھا۔ اس کے پیچھے آئینے میں سائے منتقل ہو گئے۔ وہ ادھر ادھر گھوما لیکن کمرہ خالی تھا۔ جب اس نے آئینے کی طرف مڑ کر دیکھا تو سائے صاف نظر آ رہے تھے، کھوکھلی آنکھوں اور بٹی ہوئی شکلوں کے ساتھ اعداد و شمار اس تک پہنچ رہے تھے۔ گھبرا کر سمانتھا پیچھے ہٹ گئی، لیکن آئینے میں موجود اعداد و شمار قریب تر ہوتے گئے۔ اس نے اپنے کندھے پر برفیلی گرفت محسوس کی اور ٹارچا گراتے ہوئے چیخ اٹھی۔ کمرہ تاریکی میں ڈوب گیا اور سرگوشیاں آوازوں کا ایک گونج بن گئی، ہر ایک اس کے ذہن میں گونج رہی تھی۔ فرار ہونے کی مایوس کن کوشش میں وہ دروازے کی طرف بھاگی اور اسے اپنے پیچھے بند کر دیا۔ ایک جابرانہ خاموشی چھوڑ کر سرگوشیاں اچانک بند ہو گئیں۔ وہ دروازے سے ٹیک لگا کر سانس لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس رات کے بعد سے سمانتھا سو نہیں سکا۔ سرگوشیاں دیواروں سے ٹکراتی ہوئی زور سے اور زیادہ اصرار کے ساتھ واپس آئی۔ اس نے دروازے کو بھاری فرنیچر سے ڈھانپ دیا، لیکن اس نے آواز کو کم کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ ایک بار دلکش اپارٹمنٹ خوف اور خوف کی جیل بن گیا۔ ایک صبح اسے مزید برداشت کرنے سے قاصر سمانتھا اپنا سامان باندھ کر بھاگ گئی۔ اس نے پھر کبھی بند کمرے کے بارے میں بات نہیں کی، لیکن یادوں نے اسے ستایا۔ اپارٹمنٹ خالی پڑا رہا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عمارت خراب ہو گئی۔ برسوں بعد سستے کرایہ اور پرانی عمارت کی دلکشی کے لالچ میں نئے کرایہ دار منتقل ہو گئے، اور ناگزیر طور پر کوئی بند کمرے کو دریافت کرے گا جو تجسس کے باعث دروازہ کھولے گا اور اندر کے سائے کا سامنا کرے گا۔ سرگوشیاں کبھی ختم نہیں ہوئیں۔ اسے صرف اپنے اگلے شکار کا انتظار تھا۔ مقفل کمرہ جاری ہے۔ سمانتھا بہت دور چلی گئی تھی، لیکن بند کمرے کی یادیں سیاہ بادل کی طرح اس کا پیچھا کر رہی تھیں۔ ڈراؤنے خوابوں نے اس کی نیند کو متاثر کیا اور وہ اکثر اپنے نئے بظاہر محفوظ اپارٹمنٹ میں بھی ہلکی سی سرگوشیاں سن کر ٹھنڈے پسینے میں جاگ جاتی تھی۔ اس نے آگے بڑھنے کی کوشش کی، لیکن خوف ہمیشہ اس کے دماغ کے پیچھے چھپا رہتا تھا۔ دریں اثنا پرانی عمارت خوفناک اور پراسرائیت کی طرف راغب ہونے والوں کے لیے ایک مینار بنی رہی۔ ایسا ہی ایک شخص جیک تھا جو اپنے یوٹیوب چینل پر ایک چھوٹی لیکن سرشار پیروی کے ساتھ ایک غیر معمولی تفتیش کار تھا۔ اس نے پریتوادت اپارٹمنٹ کے بارے میں افواہیں سنی تھیں اور اپنے تجربے کو دستاویز کرنے کے لیے بے چین تھا۔ جیک اپنے کیمرے کے ساتھ عمارت میں پہنچا۔ اس کا تجسس کسی بھی خوف سے کہیں زیادہ تھا۔ مکان مالک اپارٹمنٹ کرایہ پر لینے کے لیے بے چین، مقفل کمرے کا ذکر نہیں کیا۔ جیک تیزی سے اندر آ گیا، کسی بھی مافوق الفطرت واقعات کو پکڑنے کے لیے اپنا سامان ترتیب دیا۔ پہلی رات خاموش رہی، لیکن دوسری رات سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ سامنتھا کے برعکس جیک نے آوازوں کا خیر مقدم کیا۔ اس نے خوفناک آوازیں ریکارڈ کیں، اس امید میں کہ کچھ بصری ثبوت بھی مل جائیں گے۔
जब इसे बंद दरवाजा मिला तो इसका जोश और बढ़ गया। वो उसी लिए आया था। जैक के पास पुरानी चाबियां नहीं थीं, लेकिन वो तैयार था। इसने ताला उठाने वाले औजारों का एक सीट निकाला और काम पर लग गया। कई मिनटों के तनाव के बाद ताला खुलने पर क्लिक हुआ। जैक ने दरवाजा बंद कर दिया। इसके कैमरे ने सब कुछ कैद कर लिया। कमरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि समानथा ने बयान किया था। धूल और फरामोश फर्नीचर से भरा हुआ था। आईना बदहूसी से कोने में खड़ा था। जैक उसके करीब पहुंचा। इसकी टार्चा दीवारों पर लंबे लंबे साए डाल रही थी। जैसे जैसे वो आईने के करीब पहुंचा, सरगोशियां मजीद जोर से ज्यादा इसरार करती गईं। अपने कैमरे के लेंस के जरिए जैक ने आईने में आदाद व शुमार देखे। इसने तारीख शक्लों पर जूम इन करते हुए वीडियो को रोक दिया। इसका दिल खौफ और जोश दोनों से धड़क रहा था। इसने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। ऐसा लगता था कि आदाद व शुमार इस तक पहुंच रहे हैं, उनकी खोखली आंखें स्क्रीन से छीन रही हैं। जैक ने आईने से मुंह मोड़ लिया, बाकी कमरे को तलाश करने का अज़्म किया। जैसा कि इसने किया, उसने महसूस किया कि इसकी रीढ़ की हड्डी के नीचे सर्दी चल रही है। इसने पीछे मुड़कर देखा और अपना अक्स देखा, लेकिन कुछ बंद था। आदाद व शुमार अब आईने में नहीं थे, वो इसके पीछे थे। इसने इधर इधर घूमा मगर कमरा खाली था। घबराहट फैल गई जब सरगोशियां बहरा हो गईं। उसने जाने की कोशिश की लेकिन दरवाजा बंद हो गया। कमरा तारीकी में डूब गया और जैक की टार्चा टिमटमा कर मर गई। उसने अपने फोन की रोशनी को इसकी रहनुमाई के लिए इस्तेमाल किया। कमरे में साए हरकत करते करीब होते दिखाई दे रहे थे। जैक के कैमरे ने उसकी दहशत के हर लम्हे को कैद कर लिया। इसने चीख मारी, दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन वो नहीं हिलेगा। जब अचानक दरवाजा खिला तो आदाद व शुमार उसके करीब ही थे। जैक ठोकर खाकर बाहर निकला, सांस के लिए हानप रहा था। इसने कभी वापस न आने का अहद करते हुए फौरन अपार्टमेंट छोड़ दिया। लेकिन उसने जो फुटेज हासिल की थी वो नाकाबिल यकीन थी। जब उसने बाद में इसका जायजा लिया तो उसने सायादार शख्सियत को वाज़ेह तौर पर देखा। उनकी शरारती शक्लें इस तक पहुंच रही थीं। इसने वीडियो को अपने चैनल पर अपलोड किया और ये वायरल हो गया। फुटेज देखकर लोग मुतवज्जह और खौफजदा हो गए। बहुत से लोगों ने तबसरा किया कि वो अपनी स्क्रीनों से भी सरगोशी सुन सकते हैं। जैक रातों रात सनसनी बन गया, लेकिन शोहरत ने कोई सुकून नहीं दिया। सरगोशियां इसका पीछा करती थीं, हर रात बुलंद होती जा रही थीं। इसने कई बार हरकत की लेकिन आवाजें बंद न हुई। आदाद व शुमार हर अक्कास सतह पर नमूदार हो रहे थे, जो उसे मुसलसल परेशान कर रहे थे। इसकी दरियाफ्त की कीमत इसकी अकल थी। अपार्टमेंट खाली पड़ा रहा। हर गुजरते साल के साथ इसकी साख गहरी होती जा रही है। कोई भी इतनी देर तक न ठहरा कि दोबारा कमरे का सामना कर सके। सरगोशियां जारी थीं। अगली मतजस्सुस रूह का दरवाजा खुलने और अंदर के साए का सामना करने का इंतजार था। सामंथा और जैक की कहानियां एहतियाती कहानियां बिन गईं, उन लोगों के लिए एक इंतबाह जो बंद कमरे के राजों से पर्दा उठाना चाहते थे। पुरानी इमारत उनके खौफ की यादगार के तौर पर खड़ी थी, अंदर की हुलनाकियों की खामोश गवाह। और सरगोशी करने वाला हमेशा सब्र से अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा था। मुकफ्फल कमरा मजीद जारी। जैक की वीडियो वायरल हो गई थी, जिसने सनसनी के मतलाशी व गैर मामूली शायकीन और शक करने वालों की तवज्जो मबजूल कराई थी। इनमें डॉक्टर एवलिन गरानट भी शामिल थीं, जो कि सदमे और माफौक़ फ़तरत में माहिर नफ्सियात हैं। इसने लोगों के लातादाद केसेस देखे थे जो उनका शिकार होने का दावा करते थे, लेकिन जैक की फुटेज ने उसे मुतासिर किया। ये सिर्फ आदाद व शुमार की वजाहत या सरगोशियों की शिद्दत नहीं थी, ये जैक की आवाज में वाज़ेह खौफ था। इसके चेहरे पर सरासर दहशत छाई हुई थी। एवलिन ने एक सनसनी के मुतलाशी के तौर पर नहीं बल्कि एक साइंसदान के तौर पर खुद अपार्टमेंट की छानबीन करने का फैसला किया। वो सामंथा और जैक तक पहुंची। उम्मीद है कि वो उनके तजुर्बात को बेहतर तौर पर समझेगी। समानथा, जो अब भी अपनी यादों से परेशान है, हिचकिचा रही थी लेकिन मिलने पर राजी हो गई। जैक, जो अब अपने साबिका नफ्स का साया है, जवाबात के लिए बेचैन था। वो एक पुरसुकून कैफे में मिले। उनका मुश्तरका खौफ वाज़ेह था। समानथा ने अपार्टमेंट में अपना वक्त लगातार सरगोशियां अपने पीछे मौजूद ठंडक का जिक्र किया। जैक ने बताया कि किस तरह साए इसका पीछा करते हैं, हर लम्हे इस पर हमला करते हैं। एवलिन ने उनकी कहानियों में मुमासलत को नोट करते हुए गौर से सुना। सरगोशियां, अक्स, आदाद व शुमार। सच्चाई से पर्दा उठाने के लिए परअज़म एवलिन ने एक हफ्ते तक अपार्टमेंट में रहने की इजाज़त हासिल की।
वो अपने साथ साइंसी आलात की एक सफ लाई, बर्क़ी मक़नातीसी फील्ड का पता लगाने वाले इंफ्रारेड कैमरे, ऑडियो रिकॉर्डर्स और बहुत कुछ। इसका मकसद ठोस सबूत इकट्ठा करना था और अगर मुमकिन हो तो समानता और जैक के लिए कुछ बंदिश फराहम करना था। पहली रात एवलीन ने अपना सामान रखा और इंतजार किया। अपार्टमेंट बहुत पुरसुकून था, लेकिन उसने हवा में एक अजीब सा दबाव महसूस किया, उसे देखे जाने का एहसास। इसने रोशनी की हर आवाज़ और टिमटमाहट को नोट करते हुए अपने मुशाहदात को रिकॉर्ड किया। आधी रात के करीब आते ही सरगोशियां शुरू हो गईं। एवलीन का दिल धड़क रहा था, लेकिन वो पुरसुकून रही। इसने सरगोशियों के मंबा को बंद कमरे में तलाश किया। एक गहरा सांस लेकर वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। हवा धूल से भरी हुई थी और कमरा गैर फितरी तौर पर सर्द महसूस हुआ। इसने आईना देखा और एहतियात से उसके करीब गई। जैसे ही वो आईने के करीब पहुंची, सरगोशियां तेज होती गईं, तकरीबन बहरा हो रहा था। इसके साजो सामान ने अजीब रीडिंग दर्ज की, बर्क़ी मक़नातीसी शुबों में इजाफा, दर्जा हरारत में कमी और गैर मामूली ऑडियो फ्रीक्वेंसी। एवलीन ने आईने में घूर कर देखा, इसका अक्स सायादार शख्सियतों से छप गया। अचानक उनमें से एक शख्सियत उसकी तरफ लपकी। एवलीन ठोकर खाकर पीछे हट गई, लेकिन शक्ल इस तक पहुंचने से पहले ही गायब हो गई। इसने अपना कैमरा चेक किया, सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका था। आदाद व शुमार, सरगोशी, यहाँ तक कि उसका रद्द-अमल। ये बेमिसाल था। अगली चंद रातों में अपार्टमेंट में सरगर्मी बढ़ती गई। अशिया अपने तौर पर मुंतकिल हो गईं, सायादार शक्लें नमूदार हुईं और गायब हो गईं, और सरगोशी एक मुस्तकिल मौजूदगी बन गई। एवलीन ने डेटा का तज्जिया किया, इस सब को समझने की कोशिश की। इसे शक होने लगा कि आईने में मौजूद आदाद व शुमार महज रूहें नहीं हैं, बल्कि किसी गहरी कदीम चीज़ का मजहर हैं। चौथी रात एवलीन को एक पेशरफ्त हुई। इसने आईने के पीछे एक डब्बे में छपी एक पुरानी डायरी दरियाफ्त की। ये डायरी मार्गरेट नामी खातून की थी जो एक सदी कबल इस अपार्टमेंट में रह चुकी थी। मार्गरेट ने अपने पागलपन में आने के बारे में लिखा, आवाज़ों और साए की वजह से जो उसे अजियत दे रहे थे। इसका ख्याल था कि आईना एक पोर्टल है, दूसरे दायरे का गेटवे है। एवलीन ने महसूस किया कि आदाद व शुमार आईने को एक नाली के तौर पर इस्तेमाल करते हुए फरार होने की कोशिश कर रहे थे। वो जानती थी कि उसे पोर्टल बंद करना है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि कैसे। मायूस होकर वो अपने एक साथी डॉक्टर एडरीन ब्लैकवुड के पास पहुंची, जो जादू के मज़ाहिर के माहिर हैं। डॉक्टर ब्लैकवुड अगले दिन पहुंचे, अपने साथ कदीम मुतून और रसूमात का इल्म लेकर आए जो मुमकिना तौर पर पोर्टल को सील कर सकते थे। इस रात इन्होंने रस्म अदा की, मंतर पढ़े और कमरे को साफ करने के लिए बाबा जलाए। हवा भारी होती गई, सरगोशियां तेज होती गईं और आईने में मौजूद आदाद व शुमार मजीद मुश्तिल हो गए। रस्म के उरूज पर आईना बिखर गया, कमरे में उड़ते टुकड़ों को भेजा। सरगोशी अचानक रुक गई और कमरे में खामोशी छा गई। एवलीन और एडरियन ने खौफ से देखा जब साए तहलील हो रहे थे और एक खाली कमरे के सिवा कुछ नहीं बचा था। अगली सुबह एवलीन ने फुटेज का जायजा लिया। रस्म के आखिरी लम्हात को कैद कर लिया गया था। आईने के बिखरते ही आदाद व शुमार गायब हो गए। इसने राहत का एहसास महसूस किया, ये मानते हुए कि पोर्टल बंद हो चुका है। सामंथा और जैक शक्र गुजार थे, हालांकि अपने तजुर्बात से अभी दागदार हैं। इन्होंने उम्मीद जाहिर की कि पोर्टल सील होने से वो आखिरकार अमन हासिल कर सकेंगे। एवलीन ने अपने नताइज को शाये किया, मज़ाहिर और इस रस्म की तफसील जिसने उसे ख़त्म किया। ये कहानी एक सनसनीखेज बन गई, जिसने साइंसी और गैर मामूली कम्युनिटीज़ में बहस व मुबाहसे को जन्म दिया। अपार्टमेंट अब उसके शिकार से पाक बिलाखिर दोबारा किराए पर दे दिया गया। लेकिन बंद कमरे की कहानी एक अफसानवी, तजस्सुस और नामालूम की एक एहतियाती कहानी बनी रही। एवलीन ने अपना काम जारी रखा, हमेशा चौकना रहते हुए, ये जानते हुए कि कुछ इसरार हकीकी तौर पर कभी ख़त्म नहीं होते थे। और पुरसुकून लम्हों में जब वो अकेली थी, उसने कभी कभी सोचा कि वो अभी हल्की सी सरगोशियां सुन सकती है। इसे याद दिलाती है कि इस दुनिया और आखिरत के दरमियान की लकीर इससे कहीं ज़्यादा पतली है, जिसका उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था।